اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ شہریار آفریدی کے عہدے میں ایک بار پھر سے تبدیلی کر دی گئی ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی تعینات کیا جائے گا۔ اس سے پہلے انہیں وزیر مملکت برائے داخلہ سے انسداد منشیات کی وزارت دی گئی تھی۔ وہ کشمیر کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے بابر ترک سے۔ بابر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، تازہ معاملے میں وفاقی حکومت نے شہریار آفریدی کو چیئرمین کشمیر کمیٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے شہریار آفریدی کو ان کی جگہ کشمیر کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چیئرمین کشمیر کمیٹی کی تقرری کے بعد شہریار آفریدی سے وزارتیں واپس لے لی جائیں گی۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آگے شہریار آفریدی جو ہیں وہ چند روز قبل وزیر اعظم نے وزیر پارلیمانی امور اعظم سواتی کا قلمدان تبدیل کر کے انہیں وزیر انسداد منشیات کا عہدہ تفویض کیا اور شہریار آفریدی سے وزیر مملکت برائے انسداد منشیات کا اضافی قلمدان واپس لے لیا۔ تاہم ایک روز بعد ہی وزیر مملکت برائے سیفران کو وزیر مملکت برائے انسداد منشیات کا اضافی پورٹ فولیو جو ہے واپس دے دیا گیا تھا۔ شہریار آفریدی جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اعجاز شاہ، ان کے تقرر سے قبل جو ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ بھی رہے تھے۔ تاہم وفاقی وزیر کی تعیناتی کے بعد شہریار آفریدی کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے بابر شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ بھارت میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن میں پھنسے 41 پاکستانی شہری وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ ہائی کمیشن کے مطابق یہ پاکستانی سیاحت، طبی علاج سمیت مختلف ویزوں پر بھارت گئے تھے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بھٹی، بتائیے گا یہ تمام افراد بحفاظت پاکستان پہنچ گئے؟ جی بالکل، دیکھیے کرونا وائرس کے باعث جو بھارت میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستانی وہاں پہ پھنس گئے تھے۔ آج ان میں سے 41 پاکستانی واگا کے راستے پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن جو بھارت میں اس نے باضابطہ طور پر پرسوں بھارتی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ان شہریوں کو وطن واپس بھیجا جائے، جبکہ ابھی بھی اگر آپ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں تو 145 پاکستانی شہری جو ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، جن کی جلد وطن واپسی کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ جو 41 وطن واپس آئے پاکستانی، اس کے علاوہ جو دیگر 145 شہری رہ گئے ان کی وطن واپسی کے لیے بھارتی حکومت اور متعلقہ ادارے۔ ٹھیک ہے ذیشان بھٹی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اہم خبر ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی ہے اور بنیادی شرح سود اب 9% رہ گئی ہے۔ ایک بار پھر سے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کی گئی ہے اور اب کی بار 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد بنیادی شرح سود 9% رہ گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں معمولی کمی کی گئی تھی، تاہم سرمایہ کاروں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اتنی کمی کافی نہیں ہے، شرح سود میں مزید کمی ہونی چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر سرمایہ کار مسلسل نقصان میں ہیں۔ اور اب اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید کمی کر دی ہے۔ کراچی میں لوگوں کے کرونا سے مرنے کی خبروں پر شہر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ایسے میں 24 نیوز نے اموات کے اعداد و شمار بھی حاصل کر لیے ہیں۔ کراچی میں اموات کی شرح بڑھنے کی خبروں میں کتنی صداقت ہے، اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن عباس، بتائیے گا جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اس سلسلے میں؟ جی دیکھیں، بالکل کرونا وائرس کے پیش نظر جو ہے وہ مختلف خبریں گردش کرتی رہیں اموات میں اضافے کے حوالے سے، لیکن جو ہمارے پاس حقائق سامنے آئے ہیں، 24 نیوز نے جو ہے وہ 6 مہینے کا قبرستانوں کا ڈیٹا جمع کیا ہے، جس میں اموات کتنی ہوئی ہیں، اس حوالے سے کتنے لوگوں کی تدفین کی گئی ہے، وہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، جس میں رواں سال کی اگر ہم بات کریں اور اپریل کی مہینے کی خصوصاً بات کریں تو اپریل کے مہینے میں اب تک 766 کیسز جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو تدفین کی گئی ہے کے ایم سی کے قبرستانوں میں۔ 31 قبرستان ہیں شہر بھر کے اندر کے ایم سی کے، جس کا ڈیٹا ہم نے جمع کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جنوری میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اموات کی تعداد ہے، جس میں 2800 سے زائد لوگوں کی تدفین کی گئی۔ اسی طرح فروری میں جو ہے وہ 2278 لوگوں کی گئی اور مارچ کے مہینے میں 1978 لوگوں کی تدفین کی گئی۔ اور جب لاک ڈاؤن ہوا شہر بھر کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ اموات میں کمی آئی ہے۔
अभी तक जो है 766 लोगों की तदफीन की गई है। शहर के 31 कब्रिस्तानों का ये डाटा है। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो मुख्तस किए गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से 5 कब्रिस्तान, जहाँ पे कोरोना वायरस के से जो लोग जहाँ भाग होंगे उनको उन 5 कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। तो जब हमारी बात हुई सीनियर डायरेक्टर KMC से तो उन्होंने बताया अभी तक KMC के रिकॉर्ड के मुताबिक जो लोग कोरोना वायरस से जिनका इंतकाल हुआ है उनकी तादाद 14 है जिनकी तदफीन की गई है। कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में 5 कब्रिस्तान हैं जिनको कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा है कि ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करती रहीं कि एकदम से जो है वो कोरोना वायरस से लोगों की जो है वो हलाकतें ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से जो है हमने देखा कि लोगों में भी एक पैनिक पाया जा रहा था, जिसके बाद जो है वो 24 न्यूज़ ने बाकायदा तौर पे कराची के 31 कब्रिस्तान का जो डाटा है उसको हासिल किया है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो रूटीन डेथ्स हैं उसमें भी बाकायदा तौर पे कमी आई है लॉकडाउन की वजह से। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या जो डेली टारगेट किलिंग के केसेस होते हैं लॉकडाउन होने की वजह से जो हम देख रहे हैं जगह जगह पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी घरों से कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमवात में किसी हद तक कमी आई है। एक जानिब जो है वो कोरोना वायरस का खौफ लोगों को सता रहा है कि लोगों की अमवात की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी जानिब जब हम हकाइक देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है ये जो कोरोना वायरस का खौफ है। तो ये आदादो शुमार भी जो है अब सामने आए हैं। हसन साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर हेल्थ 24 न्यूज़ जाहिद चौधरी साहब। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जो ताज़ा तरीन आदादो शुमार सामने आए हैं कब्रिस्तानों के हवाले से बहुत सी जो चीज़ें थी वो वाज़े हुई हैं, सूरत हाल काफ़ी वाज़े हो गई है। सिर्फ कोरोना से जो है वो हलाकतें नहीं हुई बल्कि और भी जो दीगर बीमारियां हैं उनसे भी हलाकतें होती रही हैं, ये आदादो शुमार ये भी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इन आदादो शुमार से जो है वो काफ़ी हद तक सूरत हाल और जो पिक्चर है वो वाज़े हो गई है कि जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया था और फिर JPMC की जो डायरेक्टर हैं सीमी जमाली, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मिस्टीरियस डेथ्स हैं और शायद जो है ये इजाफा है और हम इसको जो है वो गेज नहीं कर पा रहे, हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये सूरत हाल जो है वो अब वाज़े हो गई है कि जो अमवात हैं, क्योंकि जाहिर है जो भी शख्स जहाँ भाग होगा उसकी तदफीन की जाएगी। तो ये तदफीन का जो डाटा है उसके मुताबिक बिल्कुल ये क्वाइट एक नेचुरल जो एक कुदरत का निज़ाम है कि जिसने इस दुनिया में आना है उसने यहाँ से जाना भी है। तो ये वही अमवात हैं और डेफिनेटली इसमें जो कमी है जिस तरह अभी बता रहे थे कि इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि लड़ाई झगड़े, हादसा, इसके साथ साथ जो क्राइम मुख्तलिफ होते हैं नौयत के, उसमें होने वाली जो अमवात हैं उनकी शरह जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आई है, उसमें बहुत कमी आई है और उसकी वजह से ये डेथ जो है वो जो एवरेज डेथ हर माह होती हैं जो तदफीन की जाती है उसके मुकाबले में ये कम है। लेकिन ये जो जितनी भी डेथ्स हैं ये डेफिनेटली वो नेचुरल डेथ्स हैं जो मुख्तलिफ अमराज की वजह से, मुख्तलिफ कॉज की वजह से, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो हार्ट अटैक है, दिल का अर्जा सबसे बड़ी वजह है, उसके बाद कैंसर के पेशेंट्स हैं जो टर्मिनल स्टेज पर हैं, उसके बाद तीसरी बड़ी वजह जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हैं जो कि मुख्तलिफ लोग दमा में, उसके साथ साथ जो है वो जो फेफड़ों के मुख्तलिफ अवारिस हैं उसमें मुब्तला जो अफराद हैं और बहुत अरसे से, जिसमें खास तौर पर TB का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये वो अमवात हैं जो मुख्तलिफ अमराज की वजह से हुई, जिनको शायद लेबल किया जा रहा था, एक गैर ज़िम्मेदाराना ये तर्ज़ अमल था कि इनको ये कहना कि ये शायद कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन ऐसा इसमें जो है वो इस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ये जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है इसके बाद ये सूरत हाल वाज़े हो गई है कि ये नहीं है और इसका जो पैनिक है उसकी वजह से जो फैला था उसको हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो इसको कम अज़ कम दूर करे, क्योंकि ये इससे काफ़ी ज़्यादा लोग खौफ और रास में मुब्तला हो गए थे। लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली जो अमवात हैं उनकी तादाद वही है जो अब तक जो है वो लेबल हो सकी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई भी जो है वो सर्ज सामने नहीं आई कि अचानक अमवात की तादाद जो है वो किसी वजह से बढ़ गई। जी हाँ, लॉकडाउन के यहाँ पर भी खासे मुस्बत असरात देखे गए हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन अब्बास अपडेट कर रहे थे। हसन आपका भी बहुत शुक्रिया।
बल्दिया उज़्मा कराची की सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर कहती हैं कि 1 माह 6 रोज़ के दौरान अब्बासी शहीद और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ अस्पताल में 350 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कोरोना वायरस से नहीं मरा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमारी जो ये डेथ्स का वो है, वो 361 हुई हैं डेथ्स अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में। और अगर आप रूटीन का डेटा भी देखें, क्योंकि मैंने प्रीवियस अपना डेटा भी मैं चेक करती रहती हूँ, तो तकरीबन मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखें, आपको मैं बताऊँ, कुछ ब्रॉड डेड लाए जाते हैं, कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, और इसके अलावा जो पेशेंट हैं उनके अपनी भी जो एडमिट होते हैं, मुख्तलिफ वेंटिलेटर पे होते हैं, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, तो वो सारी डेथ में ये नहीं काउंट होता कि जी वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ मेरा अपना जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज जो है मेरे का रिगार्डिंग माई हॉस्पिटल के, मेरे यहाँ कोरोना नहीं हुई है मेरे हॉस्पिटल से। कराची में लॉकडाउन के बायस गरीब आवाम कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एहसास प्रोग्राम में इंदराज कराने के बावजूद कोई इमदाद ना मिल सकी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली खान से। अली खान, बताइएगा क्या वजूहात हैं इंदराज के बावजूद रकम नहीं मिल रही? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट स्टेशन के अतराफ में। शहर कायद में लॉकडाउन के बायस शाम 5 बजे तमाम कारोबार दुकानें बंद करने का हुक्म है, और मैं इस वक्त एक मोची के साथ मौजूद हूँ जो इस वक्त अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जी बताइए, आप इस वक्त किस तरीके से जो है वो ये सारा अपना सिलसिला कर रहे हैं, लॉकडाउन का जो सिलसिला? जनाब, अभी जो 3-4 दिन से जो आ रहे हैं ना, 9 बजे आ रहे हैं और 5 बजे बंद कर देते हैं, और इससे पहले तो 10-15 दिन तक छुट्टी था, तब घर में बैठा रहता था। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को कुछ इमदाद नहीं मिला। अधिकारी की मैसेज कराया, लेकिन अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला। आपको पैसे नहीं मिला। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि एहसास प्रोग्राम में इन्होंने अपना इंदराज कराया है शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, लेकिन इन कोई इमदाद नहीं हो सकी। अलबत्ता मुखैर हज़रात जो हैं वो इनकी इमदाद करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका गुजर बसर हो रहा है। ठीक है अली खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, लेकिन दफातर से घरों को लौटने वाले अफराद इस सूरत हाल से दोहरी अजियत से दो चार हैं। मजीद जान लेते हैं, समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त लॉकडाउन में कुछ नरमी के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि सख्ती का सिलसिला भी जारी है, और सिंध हुकूमत की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज़ हिदायत जारी की गई थी कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन इस वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, गो के कुछ महकमों में कुछ दफातर में लोग आ जा सकेंगे और उनको दफ्तरों में हाज़िरी यकीनी बनानी है। सूरत हाल खासी अबतर है इस वक्त। अगर हम लॉकडाउन के दौरान की आपको सड़कों की सूरत हाल दिखाएँ तो काला पुल के अतराफ़ का ये इलाका है जहाँ पर इंतहाई मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। बसें खड़ी करके मेन रोड के ऊपर रोड को बंद करने की कोशिश की गई है, और जो दरमियाने रास्ते से गाड़ियां निकल कर आ रही हैं उसकी वजह से पीछे से आने वाला ट्रैफिक खासा मुतासिर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और एक तवील कतार लोगों की लग रही है। इस लोगों का ये कहना है कि तमाम तरह SOPs को फॉलो करते हुए, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए वो बाहर निकल रहे हैं और ज़रूरी कामों की अंजामदही के लिए वो बाहर निकले हुए हैं, लेकिन इस वक्त सड़कों पर जो ट्रैफिक का एक अबतर निज़ाम नज़र आ रहा है। समीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एहसास प्रोग्राम के तहत शहरियों में रकूम तकसीम की गई। मुतादिद मुस्तहिक अफराद को रकूम हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। कई अफराद बगैर रकूम के लौट गए। इसी बारे में मजीद बता रही हैं रोजीना अली। रोजीना, क्या इक़दाम किए गए इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ जहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत जो है मुस्तहिक ख़ानदानों में रकम की तकसीम की जा रही है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्हें पैसे हासिल करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई नादरा की जानिब से जो है कई एरर्स भी बताया जा रहा है कि सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शहरी हैं और इनका थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है इनको रकम देने के लिए। बात कर लेते हैं इनसे कि किस किस तरह के मसाइल आ रहे हैं। कार्ड जब आप चेक करते हैं तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जब कार्ड चेक करते हैं तो एक तो जो बुज़ुर्ग शहरी हैं इनके लिए मसला आ रहा है कि इनके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर मैच नहीं होते, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बाकी ये है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 937 का एक एरर है, लोकेशन बेस एरर। उसमें यह है कि जो उनसे बेनिफिशरीज़ हैं उनका शायद जहाँ इस्लामाबाद में वोट का इंदराज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से वो पैसे वसूल नहीं कर पा रहे।
तो उसके लिए कल से हमारे पास यहाँ पर नादरा का सिस्टम मौजूद होगा, तो उसके ऊपर हम जिस भी शहर के पैसे मतलब जो भी बेनिफिशरी आएगा वो यहाँ से पैसे वसूल कर सकेगा। कल नादरा की जानिब से भी मशीन यहाँ पर फराहम की जाएगी और जो बाकी मसाइल हैं उनको देखते हुए यकीनन शहरियों को कोशिश होगी कि जल्द से जल्द और बर वक्त रकम की जो तकसीम है वो की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। सराफा बाजारों का रुख करें तो यहाँ भी सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आलमी मार्केट में कीमत बढ़ने के बायस पाकिस्तान में सोने की मुजव्वज़ा कीमत 1,01,000 रुपये फी तोला की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है और सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी ताहाल जारी है। और अब बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। यूएई हुकूमत पाकिस्तानी मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेगी। पाकिस्तानियों के वीज़े की मियाद में तौसीक़ का ऐलान भी किया जा चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अवैस कयानी से। अवैस कयानी, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जुल्फी बुखारी और यूएई की जो वज़ीर बराए ह्यूमन रिसोर्स का जो है राब्ता हुआ है और दोनों वज़रा के दरमियान अहम जो राब्ते में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। यूएई हुकूमत पाकिस्तानी मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेगी और यूएई का पाकिस्तानियों के वीज़े की मियाद में तोसीक़ का भी ऐलान हो चुका है। मुलाजमतों में बरतरफ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तनख्वाह दी जाएगी। यूएई कंपनियां पाकिस्तानी मुलाजमीन को एयर टिकट का खर्च भी देंगी। इसी तरह से पाकिस्तानी मुलाजमीन को तरजीह बुनियादों पर वर्चुअल रोजगार जो है फराहम किया जाएगा। और साथ ही साथ यूएई के वजीर का पाकिस्तान और जुल्फी बुखारी से इज़हार तशक्कुर भरपूर राब्ते जारी रखने और साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली मुस्बत इक़दाम जो है वो करार दिया गया है। जुल्फी बुखारी की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत से इज़हार तशक्कुर और मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों का ख्याल रखने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो वीज़े की मियाद में जो है उसको बढ़ा दिया गया, तोसी दी गई है और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। और यूएई जो हुकूमत है अब वो पाकिस्तानी मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ भी खुद करेगी और इसी तरह जो वीज़े की मियाद में तोसी का ऐलान के साथ साथ जो मुलाजमतों से जो बरतरफ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तनख्वाह भी दी जाएगी। ये जो जुल्फी बुखारी की तरफ से कहना है और इस हवाले से बताना है कि जो दोनों वज़रा में जो राब्ते हुए हैं उसमें एक ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखे खत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि डॉक्टर जफर मिर्जा अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस जैसे मुश्किल वक्त में 2 करोड़ मास्क स्मगल कराए, जबकि भारत से टाइफाइड की वैक्सीन की दरामद में 2.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया है। अपडेट करेंगे आपको, स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 200 बेसिस पॉइंट कम कर दिए हैं। बुनियादी शरह सूद 9% पर आ गई है। इसी बारे में बात करेंगे। मारूफ सनतकार अकील करीम ढेड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील करीम ढेड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी शरह सूद अब 9% पर आ गई है, 200 बेसिस पॉइंट्स कम की गई है स्टेट बैंक की जानिब से। किस हद तक रिलीफ मिल सकेगा इससे? मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है स्टेट बैंक ने और टाइमली डिसीजन है और स्टेट बैंक ने अपना वो वादा पूरा करके दिखा दिया। जब वो ये कह रहे थे कि जब भी इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे हम इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके जाएंगे, और आज उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर लिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम है या नहीं। उन्होंने आवाम को रिलीफ फौरी तौर पर दिया और मैं समझता हूँ उसके लिए हमें स्टेट बैंक और प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक भी काफी एक्टिव हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री, ये तीनों कॉम्बिनेशन से एक्टिविटीज हो रहे हैं और आवाम की बेहतरी के लिए जो जो डिसीजन है वो ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले 15 दिन के डिसीजन को उठा लें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री इस वक्त मुश्किलात का शिकार है वो उससे बाहर आ जाएगी और आने वाले दिनों में मैं देखूंगा एक्सपेंशन भी शुरू हो जाएगी और नई इन्वेस्टमेंट भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इन्फ्लेशन के नंबर हम फर्दर देखेंगे, इंशाल्लाह गिरेंगे। और स्टेट बैंक को हम देख रहे हैं कि जब भी इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आए उन्होंने ये नहीं देखा कि आज मॉनेटरी पॉलिसी है नहीं है, उन्होंने फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ दिया। इस रिलीफ की लोगों को जरूरत थी और टाइमली ये लोगों को रिलीफ मिल चुका है और मैं समझता हूँ इसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और बहुत सारी चीजें इन्होंने दी है, स्टेट बैंक ने भी बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, रिफंड वगैरह के है, लोन की रिशेड्यूलिंग के हवाले से है और जो आपका ये लॉकडाउन हुआ है उसके हवाले से डिसीजन है, एक्सपेंशन के हवाले से है। तो ये सारे मुसलसल जितने भी डिसीजन है
मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित हो। रेड्डी साहब, ये फरमाइएगा कि अब तो IMF की जानिब से भी कर्ज़ों की अदायगी 1 साल के लिए मौखर की गई है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी शदीद मुश्किलात का शिकार पहले भी थी, लॉकडाउन की वजह से और भी मुतासिर हुई है, तो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो कि सरमायाकार एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक से, और कौन से ऐसे मज़ीद इक़दामात बेहतरी की जानिब उठाए जा सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जितने भी इक़दाम उठा चुकी है ये हमारी इकनॉमी की रिवाइवल के लिए काफ़ी है। हाउसिंग के हवाले से हो, या एक्सपोर्ट के हवाले से हो, या सेल टैक्स रिफंड के हवाले से हो, या इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से हो, या इंडस्ट्री के हवाले से हो, तो गवर्नमेंट ने अपना रोल बहुत, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा प्ले किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट के लिए हमारी कोई डिमांड होगी। हम ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हर लिहाज से एक्टिव बैठी हुई है और आवाम को मुसलसल रिलीफ पहुंचा रही है, और मैं समझता हूं कि इस तरह के रिलीफ दे के गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले कर दिया है। अब आवाम को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है कि वो अपनी एक्टिविटीज को बेहतर करें। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि जब शरह सूद ज़्यादा थी तो हमने देखा हॉट मनी निकल गई, पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स के ज़खायर थे वो खासे कम हो गए। क्या अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लॉकडाउन यकीनी तौर पर जब आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, सरमायाकारी पाकिस्तान में मज़ीद आएगी, स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार खुसूसन बेहतरी की जानिब जाएगा? मेरा अपना ये ख्याल है कि जो हॉट मनी के हवाले से जो पैसे लाए गए थे उसमें भी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उसी की वजह से हमारा रुपये में स्टेबिलिटी हमने देखी। और मैं समझता हूँ कि ये कोरोना की वजह से तो रुपये डिवैल्यू हुआ है, लेकिन हॉट मनी निकल रही थी उस टाइम पे रुपये पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आया था। लेकिन इसके बाद जाहिर बात है कि कोरोना की वबा ने काफी शिद्दत ले आई थी, उसके बाद आपका है तो वो लॉकडाउन की वजह से ये डिवैल्यूएशन हमने देखा है, क्योंकि उसमें आपके मनी चेंजर बंद थे तो मनी चेंजर की सप्लाई रुकी हुई थी, और जैसे ही आप ये लॉकडाउन खत्म होगा आप देखेंगे कि मनी चेंजर फुल एक्टिव हो जाएंगे। तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि रुपये भी, मैं समझता हूँ आज के इंटरेस्ट रेट गिरने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका रुपये भी स्ट्रॉन्ग होगा। आपके लॉकडाउन खुलने के बाद आपकी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज भी बेहतर हो जाएगी, और आपके मैं समझता हूँ टेक्सटाइल का सेक्टर भी वापस सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा हमें डैमेज भी नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट कम है, और जाहिर बात है कि हमारी इकोनॉमी का ये दोनों कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी लोकल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर है, फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और इनको अच्छी प्राइस भी मिली है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी मैं समझता हूँ बहुत आसानी से और जल्दी रिकवर हो जाएगी, और उसमें ज्यादा एक्टिविटीज होता हुआ हम देखेंगे। ठीक है, अकील करीम डेडी साहब साथ ही रहिएगा काइंडली। फ़ारूक सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शरह सूद में मजीद कमी की गई है, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, जो कि अब 9% पर आ गई है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, खुसूसन सरमायाकारों के लिए किस हद तक ये रिलीफ फराहम करेगा? बहुत ही खुशाइन कदम है, देर आए दुरुस्त, बहुत देर कर दी इंटरेस्ट रेट गिराने में, कुछ तो गिर गया। अभी भी 9% की जो शरह है ये इस खित्ते में सबसे बुलंद तरीन है। बाकी सब ममालिक तकरीबन हमसे आधे इंटरेस्ट रेट पे हैं, चाहे वो इंडिया हो या बाकी ममालिक को इस खित्ते में। इसका सबसे बड़ा फायदा हुकूमत को खुद होगा, क्योंकि हुकूमत सबसे बड़ा डेटर है, सबसे ज्यादा उधार जो है वो हुकूमत ने खुद से ले रखा है। और 2% जब कमी आती है शरह सूद में, तो मेरा तखमीना ये है कि हुकूमत को तकरीबन 400 से 500 अरब रुपया इजाफी वसाइल उसके पास आ जाएंगे, जो वो डाइवर्ट किए जा सकते हैं कोरोना वायरस से लड़ने से या कोरोना वायरस की मईशत को सहारा देने से। दूसरा बड़ा फायदा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने जो लोन ले रखे हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उनका बोझ जो है अरब रुपया सालाना का कम हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर बोझ कम होंगे, हुकूमत के ऊपर भी और हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ही शायद डरा बैठा था कि अगर इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जाएगा तो जो हॉट मनी उसने बहुत मुश्किल से इकट्ठी की थी 3 बिलियन से जायद,
اس میں سے تقریباً 70-80% جو ہے وہ آلریڈی ملک سے بھاگ چکی ہے. ہم شروع سے یہ کہتے تھے کہ ہاٹ منی جتنی تیزی سے آئی ہے اس سے زیادہ تیزی سے بھاگ جائے گی. تو اب حکومت جی ہاں بالکل، لیکن اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ پازیٹیو اقدامات جو گورنمنٹ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں یہ اکانومی کی ریوائول میں اہم کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عقیل کریم ڈھیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پنجے گاڑ رہا ہے. کرونا وائرس کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی دوا تیار نہیں کی جا سکی. کرونا سے بچاؤ محض احتیاط سے ہی ممکن ہے. یہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کورونا وائرس جو دنیا بھر میں اپنی دہشت پھیلا چکا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اپنا کر اس سے بچا جا سکتا ہے. ماہرین صحت کے مطابق باقاعدگی سے ہاتھ دھونا، ماسک کا استعمال، کھانسی اور چھینتے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال لازمی ہے اور استعمال کے بعد ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے. تولیہ اور رومال کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ ان پر جراثیم رہ جاتے ہیں. عدم دستیابی کی صورت میں کوہنی سے ناک کو ڈھانپ لینا اس وائرس سے انسان کو محفوظ بناتا ہے. کرونا وائرس کے مشتبہ مریض سے بغیر حفاظت اقدامات یعنی دستانے یا ماسک پہنے بغیر ملنے سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ نزلہ اور زکام کی صورت میں پرہجوم مقامات پر جانے سے اجتناب اور ڈاکٹر سے تفصیلی طبی معائنہ کرانا فائدہ مند ہے. لوگوں سے خاص کر جو لوگ بیمار ہیں ان سے میل جول میں کمی کر دیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی ترک کر دیں. موجودہ حالات میں اپنے آپ کو صرف گھر تک محدود کر لیں. چھوٹے بڑے اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، جبکہ سماجی فاصلہ کم کر دیں. کسی سے ضروری گفتگو کے وقت کم از کم 1 میٹر. پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کی وطن واپسی کے معاملے پر چارٹر فلائٹس کے لیے پیش رفت ہوئی ہے. اگلے ہفتے برطانیہ کے لیے اسلام آباد سے روزانہ کم از کم 5 اور لاہور سے 3 پروازیں شروع ہو جائیں گی. کرسٹن ٹرنر کا کہنا تھا کہ تمام مسافروں کو اپنی ٹکٹس کی ادائیگی کرنا ہوگی. جب ٹکٹس کی بکنگ کھلے گی تو ٹکٹ کی لاگت کی تصدیق کریں گے. ٹکٹس کی بکنگ کا آغاز کل یا ہفتے کے دن سے متوقع ہے. پاکستان میں مقیم برطانوی شہری مزید معلومات کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کی ویب سائٹ اور ٹریول ایڈوائس پر نظر رکھیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کی وطن واپسی کے معاملے پر چارٹر فلائٹس کے لیے پیش رفت ہو گئی ہے. دیگر خبریں شامل کریں. لاہور میں منعقدہ آل پارٹیز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے دوسرے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے مریضوں کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ نہ اختیار کیا جائے، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ ڈیل کیا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ارکان نے پری بجٹ تجاویز بھی پیش کر دی. اجلاس میں وزیر صحت یاسمین راشد نے کورونا کی صورتحال پر بریفنگ دی. اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ کورونا ٹیسٹنگ کا معیار بہتر بنانے کی ضرورت ہے. گندم کی کٹائی جاری ہے، اب باردانہ تقسیم ہوگا تو ان جگہوں پر رش ہوگا، اس لیے ان مراکز پر خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جائیں. اجلاس میں خواجہ سلمان رفیق نے جیل میں کورونا کے حوالے سے انتظامات پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جیل کے عملے کو مکمل حفاظتی کٹس دیں اور چھوٹے دکانداروں کے بل معاف کیے جائیں. اجلاس میں یہ بھی تجویز دی گئی کہ فوج کی طرح کورونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف کو نشان حیدر یا گولڈ میڈل دیا جائے. ٹیسٹنگ والا مسئلہ ہے نا، ٹیسٹنگ کی جو میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک لیب جو ہے آپ کی برڈ ووڈ وہاں لیب جو ہے وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرا حال ہے کہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، کیونکہ 3 میں نے خود کرائے وہاں سے جن کے ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو پازیٹیو ہے. پھر میں نے وہ چغتائی لیب سے کروائے، چغتائی صاحب سے بات کر کے، تو انہوں نے کہا جی نیگیٹو ہے. اسی طرح ایک اور جو جناح والی کو بھی ذرا دیکھیں، وہاں بھی اسی طرح کی رپورٹس ہیں میرے پاس. یہ 2 لیب کا تو مجھے پتہ ہے جو حکومت کی ہے، وہ آپ کے انڈر ہیں ڈائریکٹلی، ان کو ذرا واچ کریں. ابھی ویٹ پرچیز جو سینٹر ہے نا، کیونکہ ابھی سب سے زیادہ رش وہاں پڑنا ہے، وہاں سینٹر کے اندر سینٹر جان جو بھی ہے اس سے پہلے ان کا پورا سسٹم ہونا چاہیے، ان کا سینیٹائز کرنے کا، باقی چیزوں کا.
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ پلمونالوجی اور اینستھیزیا کے زیر اہتمام بیسک کووڈ کریش کورس کا انعقاد کیا گیا۔ کورس کا مقصد انتہائی نگہداشت میں کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال اور طریقہ علاج پر تربیت دینا تھا۔ اس موقع پر پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے انتہائی کم وقت میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تربیت کی گئی۔ پروفیسر ارشد تقی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز کو ICU کیئر پر تربیت دی گئی۔ چیئرمین HEC پنجاب ڈاکٹر فضل احمد خالد کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں تربیتی کورس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ کورس کے اختتام پر شرکاء کا آن لائن امتحان لیا گیا اور کامیاب ہونے والوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ سرکمسٹانسز میں اب ایک دم ہم جو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے مریض آئیں گے اور ہر ایک کو یہ تو تھا کہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی احساس بھی تھا کہ وینٹیلیٹر تو موجود ہوں گے لیکن ان کو چلانے کے لیے، آپریٹ کرنے کے لیے اور وینٹیلیٹر مریضوں کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹرین ڈاکٹرز کی شدید ضرورت ہے۔ سو ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ایک اسٹرکچرڈ کورس کے تحت ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے لیے تیار کر سکیں کہ وہ ان مریضوں کا خیال رکھ سکیں۔ ایک ٹیم، ایک فورس تیار کی جائے جو کہ لوگوں کے مریضوں کا اسٹینڈرڈ طریقے سے خیال رکھیں۔ پیمرا کی خصوصی ٹیم نے کراچی میں مختلف کیبل آپریٹرز کی جانچ پڑتال کی اور اورنگی ٹاؤن میں ڈیجیٹل لکی کمیونیکیشن کا سارا سامان قبضے میں لے لیا۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔